پھر اس کے بعد جنرل مشرف کا دور آتا ہے۔ جب جنرل مشرف کا دور آتا ہے تو جنرل مشرف پہلا جو کام کرتے ہیں وہ 8 سال کے لیے جو ہے پاکستان کی جو سیاسی قیادت، جس میں بلا شبہ اس وقت بے نظیر اور نواز شریف جو ہے وہ مقبول لیڈر تھے، تو ان دونوں کو ملک سے نکال دیتے ہیں۔ اور وہ 8 سال مسلسل ایک حکمران کے طور پر وہ یہاں پہ قابض رہے۔ ان کے پاس چار چار ہیٹ رہے، چار چار ٹوپیاں انہوں نے پہنی۔ چیف ایگزیکٹو تھے، چیف آف دی آرمی سٹاف تھے، وزیر اعظم بھی وہی تھے، صدر بھی وہی تھے، جج بھی وہی تھے۔ تو 8 سال آل ان آل رہنے کے بعد بھی اگر وہ کتاب لکھتے ہیں ان دی لائن آف فائر میں، اور وہ اس میں اگر کمپلین کرتے ہیں کہ امریکن جو ہیں وہ ان پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو پاکستانی اسٹیک ہولڈرز کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ پاکستان کے اندر جو ویسٹرن جو انٹرفیرنس ہے وہ اس کے پاکستان کے اوپر کتنے منفی اثرات آ رہے ہیں۔ جب کلائمیکس تھا جنم شرف کا، اس وقت جب بے نظیر ماری جاتی ہیں، تو بے نظیر کے مارے جانے کے بعد حیران کن بات ہے کہ ان کا ڈرائیور جو ہے اس کو آرام سے سندھ لے جایا جاتا ہے، ادھر جا کے مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ اس کا سیکیورٹی افسر جو ہے شہنشاہ، اس کو سندھ لے جا کے آرام سے سائڈ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اور اس قتل میں جو دلچسپ بات تھی، قتل سے تھوڑی دیر بعد ثبوت مٹانے کے لیے فرش بھی جو ہے وہ سارا دھو دیا جاتا ہے، روڈ کو بھی دھو دیا جاتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کیا جاتا ہے بلکہ بے نظیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی جو امپورٹنٹ پیپلز پارٹی کی لیڈر تھی نعید عباسی، ان کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے، ان کو بولنے سے منع کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کی ہم راز تھی اور وہ کافی چیزیں ایسی جانتی تھیں۔ اس مرڈر میں ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات ہم دیکھتے ہیں کہ آ، اس وقت جو ایڈوکیٹ بابر اعوان اور زرداری دور کے وزیر خارجہ رحمان ملک، ان کو جب بے نظیر پہ حملہ ہوتا ہے تو ان کو بے نظیر کے پیچھے جانے کے بجائے، ہاسپٹل جانے کے بجائے، وہ ادھر سے بھاگ کر زرداری کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا، کہ وہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی لیڈر پہ حملہ ہوا ہے، وہ زخمی حالت میں وہاں پہ جائیں اور اس کا انتظامات دیکھیں، لیکن ادھر جانے کے بجائے وہ گاڑی موڑتے ہیں اور سیدھا زرداری ہاؤس پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے ایک اور چیز نہیں نکلتی ہے کہ اس وقت ایک وصیت نکل آتی ہے، اور اس وصیت کے مطابق زرداری کو جو ہے وہ بے نظیر کی وصیت کے مطابق اس کو پارٹی کا انچارج بن جاتا ہے۔ اور پھر پوری وہ جو ہے ایک مظلومیت کا قصہ جو ہے پوری قوم کو سنایا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے تمام رہنما بے نظیر کی تصویر جو ہے وہ بنوا کر اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، پاکستان میں پھرتے ہیں اور بے نظیر کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں، لیکن اپنی حکومت آنے کے باوجود بھی وہ خود انویسٹیگیشن نہیں کرتے۔ اور انویسٹیگیشن جب کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں کہ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو، یعنی انہی قوتوں کو انویسٹیگیشن کا موقع دے دیتے ہیں کہ جن کے اوپر شک کیا جاتا ہے کہ وہ بے نظیر کے قتل میں بھی ملوث ہیں۔ یہ المیہ ہے ہماری قوم کا۔ اب آگے بڑھیں تو زرداری دور میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے 5 سال میں، اس کا تو کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہی دور ہے کہ جب امریکن صدر اوباما تھا، پاکستان کے اس وقت 80,000 کے قریب بندے مارے گئے، پاکستان کے جی ایچ کیو پہ دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا، اے پی ایس پہ حملہ ہوا، پاکستان کی نیول ایئر بیسز پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اسی طرح پاکستان کے کافی سولجر کو، یعنی لگ بھگ 27 یا 17 سولجر کو سلالہ چیک پوسٹ پہ وہ دن دہاڑے ان کے لوگ مار کے چلے گئے۔ اسی طرح ایبٹ آباد میں تقریباً 5 گھنٹے کا آپریشن امریکن جاری رہا، لیکن ہماری آرمی کی طرف سے اور ہماری جو ہے سول حکومت یعنی زرداری کی طرف سے مکمل خاموشی اختیار کی گئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی پاکستان کی ہسٹری پڑھنے والا، تو اس کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی لیول پہ ہر وقت ایک سازش چلتی رہتی ہے،
اور اس میں جو لوکل سٹیک ہولڈر ہیں اس سازش کا مسلسل حصہ ہوتے ہیں۔ ابھی ان ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد اگر ہم ڈیوڈ لو کے خط تک آتے ہیں، تو ڈیوڈ لو کے مراسلے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو ابھی عمران نے کرنی شروع کی ہے، اس سے پہلے کبھی عمران نے نہیں کی، نہ ہی کسی نے میڈیا چینل نے اس چیز کو اٹھایا کہ اگر ڈیوڈ لو نے اس نے باتیں کی تھیں یا کوئی پیغام بھیجا تھا جو مراسلہ آیا تھا جس کو سائفر کہتے ہیں، اس سائفر کا جو ایڈریسی تھا وہ کون تھا؟ کیونکہ ایک امبیسیڈر کے پاس تو یہ اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو بدل سکے۔ عمران خان وزیر اعظم ہے، اور عمران خان کو کون بدل سکتا تھا پاکستان میں؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا جواب سمپلسٹ ہے کہ اس وقت کا پاکستان میں چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہے وہ اس پوزیشن میں تھا کہ چیزوں کو منور کرے اور عمران خان کو ریموو کرے۔ اور پھر ہم اس وقت جو چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن جو لو لیول کے اور ہائی لیول کے جو ان کے کرندے ہیں، وہ ایک ان کا غدر مچتا ہے اور مختلف لیڈر سے وہ ملتے ہیں، جس میں عمران کے ساتھی ہیں ان سے بھی ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری پارٹیوں کے اہم لیڈروں سے بھی ملتے ہیں، میل ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے عمران خان کے ساتھ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس انیشیٹ کی جاتی ہے۔ اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب انیشیٹ کی جاتی ہے، تو اس وقت عمران کو جب نکالا گیا، ابھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان اگر 6 مہینے سے اس چیز کا پرچار کر رہے ہیں، تو عمران خان نے اس وقت اس قوم کو کیوں نہیں بتایا، اس پہ کمیشن کیوں نہیں بٹھایا، کیوں نہیں اس نے انویسٹیگیشن کرائی کہ یہ جو مراسلہ ہے یہ کس کے نام پہ لکھا ہوا ہے؟ ابھی یہ سارا جب ہو جاتا ہے، دوسری جو گورنمنٹ آ جاتی ہے اپوزیشن کی 13 جماعتوں کی، 13 جماعتوں کی جو گورنمنٹ بنتی ہے، وہ انہوں نے جتنے کام کیے ہیں وہ سب لوگوں کا ایک ہی سلوگن تھا کہ عمران خان جو ہے وہ یہ مہنگائی بہت زیادہ کر رہا ہے، ہم اس کو اتارنا چاہتے ہیں، عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن حیران کن طور پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آ کے عمران خان سے بھی 10 گنا جو ہے وہ زیادہ مہنگائی کر دی، لیکن اس پہ میڈیا کے بڑے بڑے چینل جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتا۔ اور یہ وہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے کہ ہم نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے مخالف کو شکست تو دے لی، لیکن ملکی مفاد کی جہاں تک بات ہے، ہماری 13 پارٹیوں کا اتحاد بھی جو ہے اس نے ملکی مفادات کی طرف ذرا توجہ نہیں دی، اور اگر توجہ دی بھی تو ان کی سب کی بلا مبالغہ یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان کو ویسٹرن پاور کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی چاہیے، پاکستان کو امریکہ کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا عوام ان سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ان کے وکیل ہو یا آپ ہمارے حکمران ہو؟ ابھی جب عمران خان نے اس معاملے کو اٹھایا، عمران خان نے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی، اکٹھا کیا، اور یہ الٹیمیٹلی مارچ پہ نکلا۔ ابھی جب مارچ پہ نکلا تو آپ اس پہ جو وزیر آباد میں حملہ ہوتا ہے، اور اس حملے میں جو سب سے اہم بات ہے کہ حملہ ہو گیا، چند منٹ بعد ایک بندہ جو ہے اس کو میڈیا پہ لایا جاتا ہے اور اس سے انٹرویو دلوایا جاتا ہے، اور وہ انٹرویو میں اقرار کرتا ہے میں نے مارا ہے اور میں اکیلا ہوں اور میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وزیر آباد میں حملہ ہوتا ہے، جتنی دیر میں وزیر آباد سے گجرات تک کار نہیں پہنچتی اتنی دیر کے بعد وہ جو ہے اس بندے کا انٹرویو نشر ہو رہا تھا۔ جہاں تک میڈیا میں بات ہو رہی ہے کہ ایک ویپن کے ساتھ اس کے اوپر وہ پستول والا جو لڑکا پکڑا گیا ہے، پستول سے فائر ہوا، میرے اپنے تجزیے کے مطابق ایک کی بجائے 4 ویپن فائر کیے گئے بیک وقت اس وقت، اور اس میں ایک پسٹل والا لڑکا سامنے تھا۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ اس کیمرہ میں سوشل میڈیا پہ جتنی بھی جو نا کیمرہ میں جو شارٹ ویڈیوز آئی ہے ان کا اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک اچھا خاصا لمبا برسٹ مارا گیا جو سب کاربائن یا سب مشین گن کا برسٹ ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا میں جو اس وقت کلپس ہیں یا مختلف ایویڈنس ملتی ہے میڈیا سے، آپ کو یہ بھی اس میں نظر آئے گا کہ پیلٹس کی بھی بات ہو رہی ہے، جیسے چھروں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ پیلٹس جو ہے یہ ایک تیسری قسم کی گن ہے جو پمپ ایکشن گن کے ساتھ فائر کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ
जो चौथा वेपन है असल में जिससे बुल हिट किया गया वो स्नाइपर राइफल है, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। और ये स्नाइपर राइफल से इमरान खान को या उस कंटेनर पे खड़े हुए किसी बंदे को भी हिट करना कोई मुश्किल काम नहीं था। एक तो उसकी कंटेनर की स्पीड बहुत स्लो थी, दूसरे नंबर पे इतने रश में रास्ते में कहीं भी बड़े आराम से स्नाइपर जो है वो बैठ सकता था। अब इमरान खान अगर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है इस मेरे ऊपर हमले के पीछे 3 लोग हैं, तो वो जब इन्वेस्टिगेशन माँगता है तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बिल्कुल वहाँ उस जगह पे आके रुक जाती है। पाकिस्तान के तमाम इदारे इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर रुक जाती हैं कि जैसे किसी बावर्दी शख्स का नाम लिया जाता है कि वो भी इसमें मुलव्वस है। इस चीज़ की वजह क्या है? ये सबसे इस कॉन्स्पिरेसी या इसमें ये सबसे अहम बात ये है कि आज तक पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक बहुत बड़ी डायकॉटमी है। और वो डायकॉटमी क्या है? उसमें पाकिस्तान का चूँकि पॉलिटिकल पोस्चर एक्सप्लेन किया गया है और जो सियासी हुक्मरान हैं वो आर्मी से बालातर हैं। लेकिन सियासी हुक्मरानों का अगर पूरा कंडक्ट देखा जाए तो आपको ये नज़र आएगा कि 75 साल से हुक्मरान हुक्मरानी के ऐवानों तक पहुँचने के लिए हमारे सियासतदान हमेशा फ़ौज की तरफ देखते रहे हैं और फ़ौज की हमायत के तालब रहे हैं। इमरान खान जो वाहिद शख्स है कि इसने ग़ालिबन भुट्टो के बाद इसने पहली दफ़ा जो है वो आर्मी के जो इस कंट्रोल है या आर्मी की जो इसको कह लें कि पाकिस्तानी इदारों के ऊपर जो एक इम्प्रेशन है उसको दूर करने के लिए उनको चैलेंज कर दिया है। ये पाकिस्तान का ये वो पॉलिटिकल मेकअप है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है कि इसमें इतनी कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के साथ हुई, इतनी पाकिस्तान की लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया, किसी की कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई जो है वो मुजरिम नहीं पकड़ा गया। जब इस सारी पिछली हिस्ट्री का आप तज़िया करते हैं, तो मतवक्को तो ये है कि इसमें भी कोई आपको ये नज़र नहीं आएगा कि असल जो है वो हमला करने वाला कौन है और करवाने वाले कौन हैं। लेकिन एक जनरलाइज़्ड फॉर्म में ये समझा जा सकता है कि इस वक़्त जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं और बैनुल-अक़वामी स्टेक होल्डर्स जिनमें वेस्टर्न पार्ट बिलख़ुसूस अमेरिका, वो एक लाइन में हैं और उनके अहदाफ क्या हैं? इस इमरान के ऊपर हमले के की जो हदफ है, इसको समझने की ज़रूरत है। क्या वो इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं? जहाँ तक मेरा तज़िया है, वो इमरान खान को बिल्कुल कत्ल नहीं करना चाहते। क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान को इस वक़्त मुकम्मल एलिमिनेट कर देने के बाद जो सिचुएशन पॉसिबली वोलेटाइल जितनी हो सकती है, वो ना तो अपोज़िशन चाहेगी और ना ही पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपका जो एलाई है, जो सदा से हमारा एलाई है और हमारा फ्रेंड है अमेरिका, देखा जाए तो उसको ये सबसे ज़्यादा सूट करता है कि इमरान खान को जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान में इंतशार जो है वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी ख़्वाहिश है और इस इंतशार को अगर तलाश करना हो किताबों में तो ये हुसैन हक्कानी ने अपनी किताब में इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि जिस वक़्त पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कियानी ओबामा से मिलने के लिए उसके ऑफ़िस में गए, तो ये लोग भी उनके साथ थे, तो वहाँ पे जनरल कियानी ने प्रेज़िडेंट ओबामा को एक लिस्ट दी, जिसमें मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात थे अमेरिका पे और उसमें एक इल्ज़ाम ये भी था कि अ, अमेरिका पाकिस्तान के अंदर इंतशार को हवा दे रहा है। इसी इसी मामले का अगर क्रॉस चेक करना हो तो अमेरिकन मशहूर मारूफ जो मुफक्र हैं जिनमें स्टीफन कोहन की आप बात करें, उनके ब्रूस रिडल की बात करें, उनके शेमर की बात करें या उनके फरीद ज़करिया की बात करें, उनके जोसेफ नाई की किताबों की बात करें, तो सब में वो पाकिस्तान के साथ हैंडल करने का या लेटेस्ट किताब जो है ना, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, डैनियल मर्के की एक किताब आई है जिसका बड़ा चर्चा है। तो उसमें ये बड़ा क्लियर कट है कि पाकिस्तान को अमेरिकन कंट्रोल कर रहे हैं और वो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक मुकम्मल प्लान बनाया हुआ है। और वो प्लान क्या है? उस प्लान के मुताबिक
पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को एक सॉफ्ट तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के साथ चले, और अगर इस सॉफ्ट तरीके से यानी दोस्ताना अंदाज में वो नहीं चलता, तो फिर उनके पास अगली स्टेज में क्या काम है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कंट्रोल किया जाए। और वो बड़ी क्लियर बात है कि पाकिस्तान को जो जरदारी दौर में, नवाज शरीफ दौर में, हत्ता कि इमरान दौर में भी जो उन्होंने कर्जे दिए हैं, उनके ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इकोनॉमिक एक शिकंजा जो है वो रखा हुआ है। और इसमें एफएटीएफ जो है ना वो भी मामला पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल तलवार की तरह वो लटकाए रखा उन्होंने, जिसमें अभी हमें रिहाई मिली है। अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान काबू ना आए, तो फिर उनकी अगली स्टेज उन्होंने जो तय की हुई है, वो अगली स्टेज जो है वो ये है कि जो मकामी यानी रीजनल पावर्स हैं, जिसमें बिलखसूस अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान, इनके साथ मिल के पाकिस्तान को सियासी तौर पे जो ना काबू किया जाए। अभी जब ये भी स्टेज अगर पाकिस्तान के ऊपर फेल हो जाती है, पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं इससे भी एस्केप कर जाते हैं, तो अगला मामला क्या हो सकता है? अगला मामला ये है कि पाकिस्तान में एक इंतशार बर्पा किया जाए। अगर सोशल मीडिया के या मुख्तलिफ मीडिया के जो चैनल्स हैं, या इन सब का मुताला किया जाए, तो पिछले 1 साल डेढ़ में एक जो सबसे पॉपुलर बयानिया आर्मी और आर्मी के हमैतियों की तरफ से जो फ्लोट किया गया, वो ये था कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। नो, व्हाट इज द फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर? बेसिकली इसमें पाकिस्तान आर्मी जो है उसको अवाम की नज़रों में जो गिराना, पाकिस्तान में इंतशार फैलाना, पाकिस्तान में लोगों को एक दूसरे के साथ मजहबी बुनियादों पे, सियासी बुनियादों पे और वाबस्तगियों की बुनियादों पे पाकिस्तानी अवाम को लड़ाना जो है वो अमेरिका का एजेंडा है। नो, अभी अगर इन सारी बातों का आप ये देखें कि अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है, कि अमेरिका का पाकिस्तान में अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है? क्या अमेरिका चाहता है? तो वो आपको अगर आज इमरान के बयानिए के साथ आप जोड़ें, तो फिर आपको समझ आ सकती है कि जैसे इमरान खान ने हकीकी आज़ादी यानी आज़ाद खारजा पॉलिसी, करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन, इसके अलावा जो सिविल इंस्टीट्यूशन की मिलिट्री के ऊपर बालादस्ती, ये सारी वो बातें हैं कि जो अमेरिकन की इंटरनेशनल फ्लाइट है। और पाकिस्तान आर्मी को डिग्रेड करना और पाकिस्तान आर्मी को बिलखसूस इस स्टेज पे लेके आना कि उसको सिविलियन कंट्रोल करें, ये अमेरिका का एजेंडा का एक पॉइंट है। और ये इस अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्ट हैं, ये बुनियादी तौर पे आज तय नहीं हुए, बल्कि ये इनका अगर मुताला किया जाए तो उनका अमेरिकन का एक बुश सीनियर के दौर का एक डॉक्यूमेंट है, डीजीपी जिसे कहते हैं, डिफेंस पॉलिसी गाइड। और उसमें जो बड़े-बड़े उनके थिंक टैंक्स हैं, जिसमें ये ज़ल्म खलीलदाद और ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने ये फ़ॉर्म किया था कि मुस्तक़बिल में वो किसी क़ुव्वत को अमेरिका के सामने मज़बूत नहीं होने देंगे। तो पाकिस्तान को उन्होंने मुसलसल एक तसलसल के साथ पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है, कंट्रोल कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं। और अगर 9/11 और ये वॉर ऑन टेरर की बात करेंगे, तो ये वो मौज़ू है कि जिसके ऊपर तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल मैंने मकाला लिखा था। और इसमें मैंने इस वॉर ऑन टेरर के नैरेटिव जो है उसको ब्रेक करने के बाद मैंने ये साबित किया था तकरीबन 60 किताबों और मुख्तलिफ मज़ामीन की मदद से, एविडेंस के साथ, कि अमेरिका का पाकिस्तान में अल्टीमेट एक ही ऑब्जेक्ट है, और वो ये है कि एक तो पाकिस्तान के को डीन्यूक्लियराइज़ किया जाए, या किसी तरह से अगर नहीं कर सकते तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं इनको इनका कंट्रोल जो है वो सिविल हुक्मरानों के हाथ में दिया जाए, आर्मी से निकाला जाए। और आर्मी को जो है सिविल इंस्टीट्यूशन के सबॉर्डिनेट किया जाए, और आर्मी को डिग्रेड किया जाए। और अल्टीमेटली पाकिस्तानी इदारों को पाकिस्तान आर्मी को इस लेवल पे लाया जाए कि फ्यूचर में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो अपनी कन्फ्रंटेशन देखते हैं चीन के साथ, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान चीन का या रूस का साथ ना दे। तो इस मुकाम पे आइए, तो अभी ये कन्फ्रंटेशन क्या है?
क्यों होगी, कैसे होगी, इसको इस वाक़ये के साथ या इस इमरान के बयानिए के साथ अगर आप लिंक करें, तो आपको किसी भी एनालिस्ट के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 2 अमेरिकन मुफक्किर हैं जिनमें से एक फुकुयामा है और एक सैमुअल हंटिंगटन है। फुकुयामा ने तो यहाँ तक लिखा कि अ, इस वक़्त इंसानियत का जो अक़ली इर्तिक़ा है वो मुकम्मल हो चुका है और इस इर्तिक़ा में अभी जो टोटल सम है, जो वेस्टर्न कल्चर है या वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम है गवर्नेंस का यानी सेकुलर डेमोक्रेसी और उनका जो माशी निज़ाम है जिसे कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं, ये पूरी दुनिया को इसको कबूल कर लेना चाहिए और ये इंसानियत के लिए जजमेंट डे तक यही कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए और यही पॉलिटिकल डिस्कोर्स होना चाहिए। लेकिन जब वो ये चीज़ें लिखता है तो इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तानी एक एनालिस्ट, टीवी एंकर और बहुत मशहूर व मारूफ डॉक्टर मसूद जो हैं, वो उसका फौरी तौर पे उसका अपनी इस्लामी किताबों से निकाल के एक अ, 4-5 सीरीज़ की वो सीरीज़ बनाते हैं जिसको एंड ऑफ द टाइम का नाम देते हैं और उसमें वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये जो क़यामत है वो बहुत करीब है और ये जो फुकुयामा के जो कुछ कहना चाहता है ये उसका वक़्त आ गया है। लेकिन फुकुयामा को चैलेंज कर देता है सैमुअल हंटिंगटन, वो कहता है कि अ, ये जो अमेरिकन चाहते हैं या वेस्टर्न चाहते हैं पूरी दुनिया उनकी इस फ्लाइट को कबूल कर ले, ये ऐसे मुमकिन नहीं है। इसको रूस वाले और चीन वाला जो ग्रुप है ये ज़रूर चैलेंज करेगा और जब वो चैलेंज करेगा तो उसमें जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो उसका साथ देंगे। ये वो जेनेसिस है, ये वो रीज़न है कि जिसकी बुनियाद पे जो आज ये साबित हो रहा है कि 9/11 का वाक़या, दहशतगर्दी की जंग जिसमें सारे का सारा मुसलमानों को मुकम्मल तौर पे मुसलमान मुल्कों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, मुसलमान मुल्कों पे कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, उनकी हुकूमतों को बदला गया, रजीम चेंज किए गए और उनमें पाकिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है, क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफ़ी, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान का एटमी क़ुव्वत होना, पाकिस्तान की इस्लामिक लाइट यानी पॉलिटिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी, ये सारे का सारा जो है, इसको अगर बड़े फ्रेम में रख के देखें यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो ये वेस्टर्न पॉलिटिक्स के बिल्कुल एंटी है। अभी इसका लिंक अगर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जाए और पाकिस्तान के हालात के साथ जोड़ा जाए, तो हमें ये बात बड़ी वाज़ह तौर पे नज़र आती है कि इमरान खान के ऊपर जो हमला किया गया है, इसके ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान में अगर इंतशार होता है तो वो भी और इंतशार में भी अमेरिका खुश है। अगर इंतशार के आगे एक कदम बढ़ के सिविल वॉर होती है, तो ये भी अमेरिकन जो मुफक्किर हैं उनकी किताबों में लिखा है कि अगर पाकिस्तान में सिविल वॉर होगी, इंतशार होगा तो दैट विल बी द बेस्ट टाइम कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया हमला करे और इंडिया जब हमला करता है तो अमेरिका जो है इंडिया की मदद करे और उसको पाकिस्तान के ऊपर एक क्विक विक्ट्री दिलवाए और पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं उनको चलने से अमेरिका रोके। अभी इस तरह के अगर वेस्टर्न रेडिकल प्लान्स है, अमेरिका का पाकिस्तान के बारे में प्लान है, उसके खिलाफ अगर इमरान खान ने ये नारा लगाया है, तो ज़ाहिर है कि एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ जो हमारे पार्टीज़ हैं, ये जो 13 पीडीएम की पार्टी हैं, इनका एक जो नैब के बारे में नैब कवानीन ख़त्म किए हैं, मुकदमात ख़त्म किए हैं, इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है किसी भी एनालिस्ट को और वो ये है कि ये नैब का इदारा जो है ना ये मार्ज़ वजूद में कब आया? बेसिकली इसका बानी जो है वो जनरल मुशर्रफ है और जनरल मुशर्रफ ने जिस वक़्त इसको इदारे को बनाया था, तो इस इदारे को बनाते हुए असल जो काम लेना था, वो काम 2 तरह से था। एक तो उन्होंने वक़्ती तौर पे तमाम जो पॉलिटिकल एलीट है उसकी बेज़ाब्तियों की फाइलें बनाई और उन्हीं में से उन्होंने इनको बंदे खरीद के ब्लैकमेल करके एक पार्टी बनाई जिसको काफ लीग का नाम दिया और वो पार्टी जो है, जो
नवाज शरीफ और बेनज़ीर की एब्सेंस में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, उससे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को, उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की। लेकिन अगर वो इतने सबूत उनके पास आ गए थे, इस तरह के मामलात थे, तो चाहिए तो ये था कि उनको इन्वेस्टिगेट करते और इनको वाक़ई इनसे पैसे भी ज़ब्त करते। लेकिन एग्ज़ैक्टली जिस तरह जनरल अयूब ने किया था कि अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए जनरल याहिया को अपनी स्टिक दी थी, इन्होंने भी ज़रदारी को सदर बनाया और तमाम मुजरिमों को एक सो कॉल्ड मुजरिमों को, अगर सही मुजरिम नहीं भी हैं, तो उन मुजरिमों को एनआरओ दिया और खुद बैठ के आराम सुकून से लंदन की तरफ रवाना हो गए। अब इमरान खान, इस सारे मामले में इमरान खान की कॉन्स्पिरेसी पकड़ी जाएगी, इसके कातिल कौन हैं? ये सवाल तो बड़ा सादा सा है। जो फिजिकल एक्ट करता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि फिजिकल एक्ट जो है वो छोटे मोरों का काम होता है। असल में तो ये है कि ये इसके पीछे जो लोग हैं, जो कुव्वतें हैं या जो उनका एजेंडा है, उस झंडे को रोका जाए। और ये इमरान खान के अगर बयानिए की रोशनी में देखा जाए तो ये पाकिस्तान में करीब-करीब नामुमकिन नज़र आता है। क्योंकि इमरान खान बैक वक़्त अमेरिका, पाकिस्तान में आर्मी और पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को चैलेंज करके बैठे हुए हैं। और इमरान खान के पहुँच में है क्या? क्या इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलके ये काम कर सकेंगे? इमरान खान का अपना फ्यूचर क्या है? ये एक कोई मुआवज़ा हो सकता है कि जिसमें इमरान खान कामयाब हो जाएँ, वरना वो अपनी स्ट्रेंथ का, आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो बेबसी का आलम अपना खुद बता चुके हैं कि मैं एक मुल्क का साबका वज़ीर-ए-आज़म हूँ, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे एक कोलिशन पार्टनर के वज़ीर आला होने के बावजूद जो उसके मतहत पुलिस है, वो जिनके खिलाफ मैं कहता हूँ वो मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान की फ्यूचर में कामयाबी क्या है। इसका एक ही मुमकिन हल है कि इमरान खान के कामयाब होने का, और वो ये है कि ऑल टुगेदर पाकिस्तान में जो 75 साल से प्रिवेलेंट रॉटन सिस्टम है, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। लेकिन क्या इमरान खान ये कर सकते हैं? क्या उनके पास क्या तरीक़ाकार है? आज उनकी आवाज़ मीडिया पे कोई पहुँचा नहीं सकता, जो भी बोलेगा मीडिया भी बंद हो जाएगा और बंदा भी जाता रहेगा। और उनके इंतहाई करीबी लोगों के साथ जो सलूक हुआ या उनके हक़ में जिन लोगों ने बोलने की कोशिश की, वो उनका अंजाम हमारे सामने है। इसके अलावा जो इमरान का इस मार्च का क्या फ्यूचर है, तो इस हमले के बाद जो भी प्लानर हैं या जो भी इसके पीछे हैं इस हमले के, वो अपना एक ऑब्जेक्टिव तो पूरा कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह इमरान ने तकरीबन 60 जलसे करने के बाद जो एक टेम्पो बनाया था, अवाम को चार्ज किया था, उसको वक़्ती तौर पे तो ब्रेक लग गई है। और ये ब्रेक जो है, अगर इमरान खान उनके दरमियान में मौजूद होते हैं, तो वो ब्रेक लगने की बजाय दिन-ब-दिन ये उनका क्राउड भी बढ़ता जा रहा था और अवाम चार्ज भी होते जा रहे थे और वो इस मूड तक आ रहे थे कि वो किसी भी कुव्वत से, लोकल हो या इंटरनेशनल हो, टकराने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन अभी इमरान खान को जब साइड पे कर दिया गया, 10-15 दिन के लिए वो इसमें एक्टिविटी में डायरेक्टली हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो ये उनके जो फॉलोअर्स हैं या जो उनका क्राउड है उसके लिए बड़ी मायूसी वाली बात होगी। लेकिन इसको इसके साथ एक और भी लिंक जो इम्पोर्टेंट है उसको तलाश करने की ज़रूरत है कि इमरान खान जब अपने इसको मार्च को लेके इस्लामाबाद में जाते हैं तो वो क्या चाहते क्या हैं? इमरान के बयानिए में जो सबसे कमज़ोर तरीन बात है, उसमें एक ही बात है और वो ये है कि बस इलेक्शन का अनाउंस कर दें। तो क्या इलेक्शन पाकिस्तान में जो जिस सिस्टम में वो रह रहे हैं, जिसमें वो एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते, क्या वो इस मुल्क में एक ऐसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन की वो तवक्को रखते हैं? कि एक ऐसा इलेक्शन होगा कि जिसमें उनको 2/3 मेजॉरिटी दी जाएगी, अपनी मर्ज़ी की वो हुक्मरानी करेंगे, पाकिस्तान का मर्ज़ी का एजेंडा बनाएँगे, पाकिस्तान आज़ाद होगा या हकीकी आज़ादी का जो ख्वाब वो देखते हैं या अवाम को दिखलाते हैं, वो पूरा किया जा सकेगा।
इसमें एक चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो हकीकी आज़ादी की जब वो बात करते हैं अपने एजेंडे में, तो वो हकीकी आज़ादी दुनिया में कहीं भी हकीकी आज़ादी का वजूद एग्ज़िस्ट नहीं करता। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड सोवरेनिटी तो है, लेकिन टोटल सोवरेनिटी किसी को भी नहीं है। जिस तरह एक हमारी जो सोसाइटी में, एक फैमिली में जो लाइफ होती है, आप घर की चार दीवारी के अंदर तो अपने एक्शन के लिए आज़ाद हैं, लेकिन जब माशरे में बाहर निकलते हैं, तो आपके ऊपर माशरे के जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, वो मौजूद होता है। और यही वो जो लिंक है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के ऊपर इस वक़्त जो इंटरनेशनल फ़ोर्सेस के यानी यूएनओ के या पाकिस्तान की जो दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं, चेक एंड बैलेंसेस इतने मज़बूत हैं कि उनकी मौजूदगी में बिलख़ुसूस जब पाकिस्तान मक़रूज़ है पूरे वेस्ट का, वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, अमेरिका का और चाइना, हत्ता कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक का, तो क्या पाकिस्तान आज़ाद हो सकेगा? क्या पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को मुकम्मल हकीकी आज़ादी दिलाई जा सकेगी? क्या इमरान खान की ये आज़ादी जो है, ये वेस्टर्न क्लचेस से है या पाकिस्तान के लोकल जो है मज़बूत तरीन स्टेक होल्डर्स के अगेंस्ट उनकी ये हकीकी आज़ादी है? इसका तजिया करें और उनको अगर सबको एक अलाइज़ की लाइन में लगाएँ, तो इमरान खान के इस मार्च का अ और इमरान के जो पॉलिटिकल फ्यूचर है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन पॉलिटिक्स में कोई चीज़ ख़त्म ही नहीं होती और पॉलिटिक्स का यही सबसे बड़ी वेस्टर्न डेमोक्रेसी की जो है वो उसमें जो खूबसूरत चीज़ है, जिस तरह ज़रदारी साहब भी कहते हैं कि सबसे बड़ा रिवेंज जो है वो सियासत है। तो किसी वक़्त भी कई प्लेयर जो हैं वो इमरान खान की तरफ टिल्ट कर सकते हैं या इमरान खान के साथ कई ऐसे करीबी साथी हैं जो मुशर्रफ की गवर्नमेंट में भी थे, जो ज़रदारी की गवर्नमेंट में भी थे, जो नून लीग की गवर्नमेंट में भी थे, तो वो भी उनको छोड़ के जा सकते हैं। इसलिए इमरान खान के मार्च का या इसके इनके जो पॉलिटिकल फ्यूचर का ये मामला जो है, ये एक ऐसा फिनोमेना है कि इसको समझना इसके लिए बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत क्लियर है और लोकल पॉलिटिक्स जो है वो भी बहुत क्लियर है। लेकिन अगर वो अवाम को लेके साथ चल रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को 100% आज़ादी नहीं, तो कम अज़ कम 50% भी अगर वो आज़ादी दिलाने में कामयाब हो गए, रूल ऑफ लॉ को रीइंस्टेट करने में कामयाब हो गए या एट लीस्ट मिलिट्री और पॉलिटिकल लीड के बीच में एक लाइन खींचने में कामयाब हो गए कि वो अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है डिसाइड कर लें, तो शायद ये भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। लेकिन जहाँ तक इमरान की बात है, अगर तमाम हक़ाइक़ को सामने रखा जाए, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का और लोकल पॉलिटिक्स का तजिया किया जाए, तो इमरान का पाकिस्तानी फ्यूचर में टू थर्ड मेजॉरिटी वाला ख्वाब तो बहुत मुश्किल नज़र आता है। लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि जिस तरह भुट्टो को मारने के बाद भी पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकाला जा सका, जिस तरह नवाज़ शरीफ को 3-4 दफ़ा रिमूव करके भी पॉलिटिक्स से बाहर नहीं किया जा सका। इमरान खान भी एक अरसा लंबे अरसे तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनका रोल रहेगा। अगर वो खुद पॉलिटिक्स से रिमूव भी कर दिए गए, लेकिन उनने जो इस कौम के अंदर जो जज़्बा या बातें जगाई हैं, वो इस कौम को हॉन्ट करती रहेंगी और ये बहुत थोड़ा-सा वक़्त है और ये उस वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए कि जब पाकिस्तान की मिलिट्री की क़यादत बदलेगी, कुछ हक़ाइक़ ऐसे भी हैं जो एकदम स्क्रीन के ऊपर सामने आ जाएँगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।